Good morning to all of you. Hope all of you are fine at your home. Before starting our assignment, I take a pledge. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risks to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So students, let's begin our chapter subject and predicate. In the last assignment we done the underline the subjects and circle the predicate, identify the compound subjects and predicate. Okay, we have done up to 15 and in this we will start from the 16th. Monica studied hard and cleared the exam. Students, in this Monica is a subject, studied hard and cleared the exam is a compound predicate because there is a and I have told you that where is an and but, then you have to make it compound predicate. The rise in temperature is rather worrying. The rise in temperature is a subject, is rather worrying is a predicate. Charity begins at home. Charity is a subject, begins at home is a predicate. The apples and the bananas are on the table. The apples and the bananas is a compound subject, are on the table is a predicate. Reading Sherlock Holmes stories, this is the subject, is what excites me most, this is a predicate. Playing chess is a subject, is his favorite hobby, is predicate. Vinayak's grandmother is a subject, helped him with his homework, it's a predicate. This event was a success, this event is a subject, was a success is a predicate. Virat Kohli, Sikandar Dhawan and Rohit Sharma. Beta, these are the compound subjects, are in good form. Are in good form is a predicate. India is a truly incredible country. India is a subject, is a truly incredible country is a predicate. Puppies and kittens. Puppies and kittens are a compound subject, are a tremendous responsibility is a predicate. Amol and Tanya is a compound subject, have been friends since the first day of school is a predicate. Nouns, pronouns, verbs and adjectives are compound subject, are parts of speech is a predicate. The other parts of speech is a subject, are preposition, adverbs, conjunctions and interjections are a compound predicate. Dr. APJ Abdul Kalam was a brilliant scientist, a wonderful human being and the 11th President of India. Dr. APJ Abdul Kalam is our subject, was a brilliant scientist, a wonderful human being and the 11th President of India is a compound predicate. Now start identifying the subject. Our next topic is identifying the subject. How can we identify the subject? बेटा हम subject जो हैं वो कैसे identify कर सकते हैं? Very often the subject comes before the verb. ज़्यादातर क्या होता है, जो subject है वो verb के पहले आता है. For example, Mahima is my best friend. Is a verb and Mahima is a subject. And however in sometimes the subject follows the verb. कई टाइम पे जो subject है वो follow करता है verb को. Let us study them. Sentences that begin with here and there. जो sentences हैं जो start होते हैं here और there के साथ, जो subject है वो usually appears at the end, वो end में होता है. There are the two puppies. अभी यहाँ पे आर आ गया तो टू पपीज जो है वो एंड में हमारा सब्जेक्ट आ गया. इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट फॉलोज द ऑक्सिलरी वर्ब्स.
जो सब्जेक्ट है वो किसको फॉलो करता है, जो हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डज माया नीड अनदर ब्लैंकेट। अब जो ये डज और नीड है ये हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं और जो माया है वो हमारा सब्जेक्ट है। हैव वी मेट बिफोर, इनमें वी। डिड द डॉग बार्क, द डॉग इज अवर सब्जेक्ट। टू फाइंड द सब्जेक्ट इन एन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जब हमने सब्जेक्ट जो है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में फाइंड करना होता है, वी शुड चेंज द क्वेश्चन। जो हम क्वेश्चन है उसको डेक्लरेटिव सेंटेंस में जो है वो चेंज कर देते तो हमारा ईजी हो जाता है। जैसे हमारा क्वेश्चन था डज माया नीड्स अनदर ब्लैंकेट, अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, माया नीड्स अनदर ब्लैंकेट। तो इसमें माया जो है वो हमारा सब्जेक्ट जो है वो आगे आ गया। हैव वी मेट बिफोर, वी हैव मेट बिफोर। अब हैव के आगे, वर्ब के आगे सब्जेक्ट आ गया तो हमने वी को कर लिया। डिड द डॉग बार्क, द डॉग बार्क्ड। अब बार्क्ड हमारा वर्ब है, द डॉग हमारा क्या हो गया, सेंटेंस सब्जेक्ट। सो स्टूडेंट्स, इन द इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आपको बहुत ध्यान से जो है इसको देखना है कि जिसमें हमने अपना सब्जेक्ट जो है उसको अंडरलाइन करना होता है, चूज़ करना होता है। इसमें क्या होता है, यू होता है, जो हम ज़्यादातर लिखते नहीं हैं और ना ही बोलते हैं। जैसे मैं, आप मेरे सामने कोई बैठा है और मैं उसको बोलूँ कि टेक दिस ग्लास, कि आप ये ग्लास ले लो, ठीक है, टेक दिस ग्लास। तो मैं अब उसको ये तो नहीं बोलूँगी तुम ग्लास ले लो ऑटोमेटिकली, है कि वो मेरे सामने बैठा है तो वो हम उसको यू लगा के ही बोलेंगे ना। तो यू जो है वो हम उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे। जैसे इसमें भी एग्जाम्पल है, टेक दिस बुक, अब वो हमें ही बोल रहा है, ठीक है ना, जो हमारे सामने बैठा है। फर्स्ट पर्सन जो है वो सेकंड पर्सन को ही बोल रहा है कि यू, कि तुम ले लो, तो हमने ब्रैकेट में इसको यू लगा देना है। हम कहते हैं लुक एट दैट नाइटिंगेल, कि नाइटिंगेल की तरफ देखो, कि यू, कि तुम देखो। सॉ द सीड्स इन नवंबर, जो सीड्स हैं वो नवंबर में हमें बीजने चाहिए, वो क्या आ जाएगा, यू, कि तुम इसको बीजो। ठीक है बेटा, जो यू है हम उसको हमेशा ब्रैकेट में लगाएंगे। इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस द सब्जेक्ट कम्स बिफोर द वर्ब, जो सब्जेक्ट है वो बिफोर के वर्ब के पहले ही आता है। हाउ ब्यूटीफुल शी लुक्स, लुक्स के आगे शी आ गया, शी हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। हाउ अमेजिंग द ताजमहल इज़ हमारा वर्ब है तो ताजमहल हमारा सब्जेक्ट आ गया। To find the subject, we should change the exclamatory sentences into a declarative sentences. अब जैसे हमने पहले भी जो इंटेरोगेटिव को डेक्लामेटिव में किया था, डेक्लारेटिव में, ऐसे ही एक्सक्लामेटरी को भी हम डेक्लारेटिव में कर रहे हैं। शी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, ये था ना, हाउ ब्यूटीफुल शी लुक्स, अब शी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, तो अब इसमें शी जो है वो हमारा सब्जेक्ट आ गया। हाउ अमेजिंग द ताजमहल इज़, द ताजमहल इज़ अमेजिंग, तो द ताजमहल आ गया। समटाइम्स सेंटेंसेस टेक इट एज देयर सब्जेक्ट, कई बार जो इट है उसको भी हम सब्जेक्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ यूजली यूज इन नॉन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ये ज़्यादातर किस में यूज़ किया जाता है, नॉन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में, वेयर द सब्जेक्ट इज़ नॉट डायरेक्टली अटैच्ड टू द वर्ब, जहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो डायरेक्टली जो है वर्ब के साथ जो है वो अटैच नहीं होता, ठीक है, बट इज़ प्लेस्ड एल्सवेयर इन द सेंटेंस, बट वो सेंटेंस के अंदर कहीं ना कहीं लिखा हुआ होता है। इट इज़ ब्राइट सनी डे, अब इट के बारे में बात करें तो यहाँ पे इट आ गया। इट इज़ गोइंग टू रेन टूडे, तो इट इज़ गोइंग टू रेन टूडे, ओके। तो इट इज़ अ डमी pronoun and acts just like any other noun pronoun in a sentence. it जो है वो एक डमी pronoun है, इट इज़ द डमी pronoun, ये जो है एक डमी pronoun है, एंड एक्ट्स जस्ट लाइक एनी अदर नाउन pronoun इन अ सेंटेंस। अनलाइक द ऑर्डिनरी pronoun it, dummy it pronoun refers to nothing specific. सिमिलरली वी यूज़ देयर, जब हम देयर यूज़ करते हैं वो भी हमारा जो है वो डमी सब्जेक्ट की तरह स्ट्रक्चर्स करता है, लाइक देयर इज़ एंड देयर आर। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ मैन आउटसाइड द ऑफिस हु वांट्स टू टॉक यू, ठीक है। अब देयर इज़ इसमें हमारा क्या आ गया, सब्जेक्ट। देयर आर क्वाइट अ फ्यू सोवेनियर्स शॉप्स आउटसाइड द ताजमहल, ठीक है, देयर आर, ये हमारा क्या आ गया, सब्जेक्ट। नाउ इन दिस बी पार्ट अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन ईच ऑफ दीज सेंटेंसेस,
जैसे अभी मैंने आपको बोला था, फिर यू जो है हम जिसको बोलते हैं कि इधर देखो, वो देखो, ये उठाओ, तो हम उसके आगे ब्रैकेट में यू लगाते हैं. इन दिस फर्स्ट देयर इज सेम लाइक दैट, लुक एट द कुकू ऑन दैट ट्री. अब इसमें लुक एट द कुकू, कुकू को देखना है ऑन उस ट्री पे. अब किसको बोला जा रहा है कि तुम्हें, तुम्हें कौन हो, यू. ठीक है, तो हम इसको यू को यहाँ पे ब्रैकेट में लगा देंगे. इट वॉज अ फनी जोक. इट वॉज, तो यहाँ पे इट क्या आ गया हमारा सब्जेक्ट. मिक्स द बटर एंड द शुगर फर्स्ट, वो हमें क्या बोल रहा है कि तुम मिक्स करो बटर और शुगर को सबसे पहले. ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा यू जो है हम उसको ब्रैकेट में लगाएंगे. इंजॉय योर न्यू हॉबी, तुम अपनी इंजॉय करो हॉबी. किसको बोला जा रहा है, तुम्हें, कि तुम अपनी हॉबी को इंजॉय करो. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू. इट हैज़ बीन वेरी डैम्प एंड डार्क सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पे इट हमारा जो है वो सब्जेक्ट आ गया. वन ऑफ माई हॉबीज़ इज़ बर्ड वॉचिंग, तो यहाँ पे वन ऑफ माई हॉबी जो है ये हमारा सब्जेक्ट आ गया. आर बर्गर्स एंड फ्राइज गुड फॉर यू, जो बर्गर्स एंड फ्राइज है ये हमारा क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया. रिटर्न दिस बुक टू द लाइब्रेरी इमीडिएटली, दिस बुक ये हमारा क्या आ गया, सब्जेक्ट. डू यू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग हार्ड, यू जो है वो हमारा क्या आ गया, सब्जेक्ट. देयर आर सम बनानास ओवर देयर, अब देयर हमने जैसे इसमें भी किया था, देयर इज, देयर आर, सेम लाइक दैट देयर. तो देयर आर जो है हमारा क्या हो गया, ये देयर आर जो है हमारा सब्जेक्ट. डिफरेंट स्पाइसेस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रो ऑन दिस आइलैंड, अब डिफरेंट स्पाइसेस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स यहाँ तक हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट. जो ग्रो होते हैं हमारे आइलैंड पे ये हमारा हो गया प्रेडिकेट. नाउ इन सी पार्ट, कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय एडिंग सूटेबल कंपाउंड सब्जेक्ट्स और प्रेडिकेट. अब इसमें हमने कंपाउंड सब्जेक्ट लगाना है और प्रेडिकेट लगाना है. द लास्ट बुक, लास्ट बुक जो है ये हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट है, इसमें अब हमने इसको प्रेडिकेट लगा देना है. वाज गिवन टू द क्लास. द गंगा एंड द यमुना आर द नेम्स ऑफ द रिवर्स इन इंडिया. माई मदर इज़ अ डॉक्टर. Eskimos and polar bears live near the South Pole. Ram and Shyam play in the park every Sunday. Watermelon and strawberries are red and juicy. Vegetables are healthy, tasty and good for us. A caterpillar is reptile. Anjali and Sunita are good friends. Manali and Kashmir have snowfall every winter. So students, with this we have completed our second chapter, subject and predicate.